बस अब नहीं होगा, कुछ भी कर लूँ नहीं होगा। तो बस मैं यही कहूँगी, कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना और ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना है। ले चुका था जो मेरा सीए वाला जो मैंने सेक्शन किया था, वो मैं उसी सेक्शन में रिस्क में ले चुका था। तो अब मैं बाकी के 90 के ऊपर मैं जो रिस्क, जो मैंने 20 क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए नहीं किए, सॉल्व किए पर मैंने मार्क नहीं किए, उसका रीजन यही था कि मैं उनको अब और रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे और नेगेटिव में ले जाते हैं। Well, my name is Lakshit, and I have been preparing for CLAT for about 5 to 6 months since from now. मतलब अब से 5-6 महीने पहले शुरू किया था। एंड देन आफ्टर दैट, उससे पहले तो मुझे क्लैट के बारे में पता भी नहीं था। एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट फ्रॉम अराउंड मे, फर्स्ट वीक ऑफ मे, एंड दैट्स ऑल। Okay, you, Sakshi, you tell. So मैं But you for 2 years or 2 months. साक्षी Yes, 5 yes, मिनट रुक I जाओ, बाद just में पढ़ started. अभी कुछ देर रुक जाओ। Yeah, I'm not studying. I started preparing just a month ago. In I guess 14th or 15th June, when my serious preparation started. And so, do I need to tell my rank also? No, if you want. अगर But तुम if you चाहो are, if you are comfortable, it's okay. Because, yeah, Okay, no need to try. no need, it's okay. My rank was 7518, and my parents were so happy with this rank because they were thinking like, oh, you have prepared in 1 month, so if you have taken more than 1 year or 2 years, so you would have done so You great. must have done it, right? Correct. Okay. That is why I So, don't feel that much guilty. It's okay, yaar. I have seen people who are preparing for on Telegram also 2 years and they have got rank in 13,000, 14,000. Yes, exactly. Good. You must be satisfied with whatever you have got. Okay. So, after सिर्फ 8 months था, did you read the newspapers? Not even a single one. And that's the most important. Actually, I have listened to the interview. When my 10th board got cancelled now, the first thing that I did was that I opened YouTube and I searched proper interview just to get an idea that what that is and what actually we need to do. ठीक है, तो उसमें मेरे को सबने यही बोला था that newspaper is the most important and having a less time और उसमें reading speed habit मतलब inculcate करना is important. तो difficult भी होता है, that's okay. So लक्ष्य जी आप बताओ, did you read the newspapers every day? Yeah, I started reading newspaper I think in mid-June, as the exam was in July, but I started reading the newspaper since about 15th or 16th June. Okay. Which website do you follow or any compendium for GK? To be specific, I didn't go through any specific compendiums or websites. However, I did keep an eye on every event that came in newspaper or that was of significance and importance. However, जो मैंने पढ़ा था उसमें से कुछ नहीं आया जीके। तो it doesn't matter कि मैंने क्या पढ़ा था, इजराइल पैलेस्टाइन इशू, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उनके लिए भी उससे भी कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया, बिल्कुल। regret. Yeah, because I studied about 60 to 70 topics which are of utmost importance. You told me before exam, आपने बताया था on Telegram. About 60 to 70. तो 70. So 60 to 70 topics I studied, but I thought maybe at least 5 topics तो उसमें से आ ही जाएंगे। 8 topics approximately आते हैं, उसमें से 5 topics तो आ ही जाएंगे। 5 topics का एक टॉपिक भी नहीं आया। पर था कि कुछ जो नॉर्मल कैजुअल चीजें जैसे एनएचआरसी की फुल फॉर्म पूछी थी, वो सब चीजें और कुछ लॉजिकली डिराइव करने वाली चीजें जो लॉजिकल बेस पे करे जा सकते थे कुछ क्वेश्चंस, तो वो मैंने किए थे। तो जीके मेरा थोड़ा बहुत जो मार्क्स गेन किए वहीं से। Did you saw the 2020 paper actually before starting मतलब the prep or before CLAT examination? 2020 का पेपर देखा था? हाँ, मैंने 3-4 दिन पहले उसको सॉल्व किया था। फर्स्ट मिस्टेक मिल गई हमें जो सबको सीखनी चाहिए। मैंने सॉल्व नहीं किया। मैंने देखा था, मैंने सॉल्व नहीं किया। मिल गई। मैंने देखा था। तो whoever will watch this video, first mistake आप ले लो। सबसे पहले 2020 का पेपर उठाओ, सैंपल पेपर उठाओ, उसको अब 2021 का उठा लेना। अब 2021 का उठा लेना। दोनों ईयर का उठा लेना। दोनों का पर उसमें यह है कि जीके पे कभी भी ये हमें नहीं सोचना है कि स्टैटिक का ही करंट फोकस हर जगह पे करना पड़ता है। तो उस पे हमें फोकस सब पे रखना है, स्टैटिक भी और सीए भी। हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक कई बार छोड़ देते हैं, और इन्होंने इस बार वही किया कि सीए के नाम पे इन्होंने स्टैटिक दे दिया था। What's the name? I don't remember. Mustafa sir. क्या नाम है? Flight President Mustafa sir, right? So he made a video and he told that friends are blaming him and all that. No static. लेकिन I saw his whole video and then I realized he said that हम चाहे कुछ भी करें उनकी मत मानो। उन्होंने खुद कहा था उस वीडियो में that see the flag website, उसमें लिखा है current affairs related static GK also, और उसमें उन्होंने बताया था in Bangladesh someone was assassinated that year, तो उससे related आया था। So it is like UPSC
everything under the sun can be asked. So we need to cover each and every aspect. चाहे हम उसका पूरा नहीं करें, लेकिन एक आइडिया हर टॉपिक का होना चाहिए. बिल्कुल. सेकंड मिस्टेक जो हमने देखी न्यूज़पेपर दोनों में से किसी ने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ज्यादा टाइम तक, है ना. न्यूज़पेपर एक्चुअली क्या कर पाए थे, उन्होंने नहीं कर पाए ना. एक्चुअली मेरा क्या था, उसमें मेरा थोड़ा एक अलग सीन भी था. मैं शुरू से कभी मैं जीके पे ध्यान देता नहीं था, बचपन से ही कभी नहीं दिया. अचानक से इन्होंने अब जीके डाल दी. क्लैट के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था. मैंने क्लैट का नाम ही मैंने फरवरी में भी नहीं, अप्रैल में सुना. अप्रैल में ही मैंने अप्लाई किया. मई में फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू की. और फिर मैंने उस समय तक तो मैं ये सोच रहा था कि मैं जीके छोड़ के आऊंगा, मैं बाकी सेक्शंस पे ध्यान देता हूँ, मैं जीके पूरा छोड़ूंगा. तो फिर ये किसी को नहीं करना मैंने भी सोचा हुआ था. ये किसी को नहीं करना चाहिए कि एक सेक्शन छोड़ दो या फिर इस तरह से, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि क्लाइंट में लोग कम से कम मैथ्स छोड़ने की सोचते हैं कि मैथ्स पूरा छोड़ दें. और एक्चुअली मेरे लिए मैथ्स ही एक ऐसा पार्ट था जिसमें मेरी 100% एक्यूरेसी थी और वही मेरे लिए सबसे स्कोरिंग पार्ट था. तो उसकी वजह से क्या है, मतलब कोई भी ऐसा सेक्शन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं छोड़ना है जिसको हम सोचे कि नहीं ये सेक्शन जो है वो इतना एटमोस्ट इंपॉर्टेंस का नहीं है, ऐसे हम छोड़ सकते हैं. तो वो कभी नहीं छोड़ना है. और जीके में फिर मेरे पास ये था. फिर लेकिन जब जुलाई आया तो मेरा बाकी जो थे पोर्शंस जो थे वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुके थे. जून तक बाकी जो पोर्शन थे वो काफी हद तक मुझे कंप्लीट मेरे लग रहे थे कि हाँ ये भी काफी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया है. फिर एक जीके ही पोर्शन था जिसमें मैं मॉक्स भी देता था, तो मेरे जीके में स्कोर 0 आता था. तो उस चीज को मैंने देखा, मतलब मेरा जीके में जब स्कोर 0 आ रहा है तो मेरे को लगा कि अब जब मैं बाकी सब में स्कोर कर रहा हूँ तो जीके में कम से कम 5-10 मार्क्स तो आने चाहिए 40 में से. इतना तो मैं करूँ कि 5-10 मार्क्स आए. तो लेकिन जब 5-10 मार्क्स की बात रही तो फिर मैंने सोचा चलो करते हैं, फिर उसको एक साइड से करते हैं. फिर उसके बाद दिव्य की क्लासेस शुरू हुई थी, मैं उसको किया. फिर कुछ और भी मैंने अलग 35+, तो उस सब का मिला के टोटल मिला के फिर तब जाके मेरा उसी तरीके से हुए थे 60-70 टॉपिक विद इन लास्ट 30 डेज के आसपास में. तो ये चीज रही थी पूरी. तो बात ये कि छोड़ना कुछ नहीं है. Next thing that you all need to learn is छोड़ना कुछ नहीं है. This is that exam. Okay. So I want to tell something about mine. That मेरे को ना I was very happy that I would take law as a career and I won't be taking any exam like music and reading. But I someday पता नहीं क्या हुआ in 10th I searched the law exam and पता नहीं क्या हुआ and I saw that exam. I was so sure that what is that math English I was like English but then जैसे बड़े होते हैं we understand that there is किसी का लोग there is competition everywhere. कोई चीज नहीं है जिससे हम एस्केप कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो सेकंड वीडियो इज मोर मैथ. वीडियो वीडियो मोर मैथ. No, never. Maths was my strongest subject. So I need that responsibility 100% accuracy because I don't like math. हमें मैथ्स जबरदस्ती पढ़ाया गया था. आईआईटी जेईई के लिए जब तैयारी की एडवांस क्लियर किया तो उसमें पढ़ाया गया था. तो अच्छा, but what's your main subject? I was PCM. I am a math. I wanted to have economics, but it was not available in my Okay, did you read any notes? And would you suggest कि आपने notes में कुछ गलती करी या कुछ अच्छा किया था हाँ, नोट्स में मैंने वो जो सर की क्लासेस करी थी उसमें मुझे टॉपिक्स जो बताए थे उसके नोट्स मैंने करे थे. जैसे वो क्लास में 5 क्वेश्चंस करवाते थे तो वो उसका नोट्स मैंने कभी नहीं करा, क्या क्वेश्चंस करवाए उन्होंने. लेकिन मैं उनके पहले वो टॉपिक्स पहले पढ़ा करती थी नेट पे, दृष्टि पे या फिर इकोनॉमिक टाइम्स पे इस पर पढ़ती थी और वहाँ से नोट्स करती थी. फिर अगर जैसे उन्होंने कोई क्वेश्चन करवाया तो उसका मेरे को लगा कुछ नया पॉइंट मैंने लिखा नहीं आता वो मैं लिखती थी. और ये ईजी था, वैसे ये करना चाहिए था सबको. मैं तो एग्जाम के एक दिन पहले 2 घंटे पहले तक वो कॉपी लेके बस घूम रही थी. वो अलग बात है कुछ आया नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी डेडिकेशन थी. हाँ, वो करना था. तो मॉक टेस्ट जो थे ये सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है मॉक टेस्ट की. तो डिड यू स्टार्टेड हाउ मच मॉक टेस्ट डिड यू गिव? बिकॉज आई हैव लिसन्ड टू सम प्रॉपर इंटरव्यूज दे सेड किसी ने कहा 45, किसी ने कहा 55, किसी ने कहा 90 बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग फॉर 2 years एंड दैट. तो कितने मॉक टेस्ट आप लोगों ने करे थे और टाइम के साथ करे थे या नहीं करे थे? मैंने टाइम के साथ करे थे. मैंने मेरे को लगता है मैंने 5 या 6 करे होंगे, बाकी सारे मैंने सेक्शनल करे थे. To all the people while listening. Okay, आपने कितने करे किया? मैंने जून की स्टार्टिंग से मॉक शुरू किए थे. वीकली एक मेरा मॉक पक्का था कि वीकली एक मॉक देता था मैं. मोस्टली अनअकैडमी पे ही देता था तो टाइम उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता था. हाँ, वो संडे या चैंपियनशिप मॉक टेस्ट तो मोस्टली मैं उसमें देता था. और उसके अलावा भी मैंने खुद से कुछ मॉक्स किए थे, लेकिन वो मैंने सेक्शनल टाइप से किए थे खुद पे इंप्रूवमेंट के लिए. वो मैंने टाइम बेस्ड नहीं किए थे. उसमें से मुश्किल से 2 या 3 ही मॉक्स थे ऐसे जो मैंने खुद से टाइम बेस्ड लगा के किए थे, क्योंकि मेरी टाइम बेस्ड प्रैक्टिस तो वहाँ पे हो जा रही थी अनअकैडमी पे. और मेरा जो था, मैं जब भी मॉक करता था, मेरा ओवरऑल मॉक अटेम्प्ट करने का टाइम, अगर मैं उसको बाद में खुद से एनालाइज करूं तो ओवरऑल मेरा मॉक अटेम्प्ट करने का टाइम 2 hours 30 minutes बैठता था. लेकिन हम लोग के पास टाइम रहता था 2 hours का, तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता था. कहीं ना कहीं या तो क्वेश्चन शॉर्ट करके कि इस सेक्शन से ये हटाना पड़ेगा या फिर इतना सेक्शन में ये रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. तो वो एक थोड़ा मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इस चीज़ में.
और बाकी हाँ, इसमें मैं एक चीज कहूंगी कि जैसे लास्ट में एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी, मेरे को लगा ये काम करेगा लेकिन करा नहीं एक्चुअली। मैंने लास्ट में वीडियो देखी कि हाँ लास्ट में टिप्स क्या क्या है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है लास्ट के बस एक हफ्ते में। असल में ये होता नहीं है। अगर आप लास्ट के एक हफ्ते में ऐसे करोगे ना कि हाँ मैंने 25 मिनट देना है इसको, इस 25 मिनट इसको, तो ऐसे नहीं होगा। एग्जाम टाइम में मेन क्या होगा, जो आपने पहले से करा होगा वही काम आएगा। या जो बिल्कुल हुआ मेरे साथ। वो पहले की जो प्रैक्टिस है वही तुम्हारी लगातार चलनी चाहिए। ये नहीं कि तुम उसको लास्ट पॉइंट पे चेंज करोगे, लास्ट पॉइंट पे चेंज करोगे तो वो गड़बड़ करेगा। अच्छा, ईगो में तो लेना ही अबाउट डू यू नो अबाउट आकांत सर फ्लैट मेंटर के प्रोग्राम जानते हो? या आई नो। हाँ मैं उनके जानते ग्रुप में हूँ। हो? तो उनकी ना एक वॉइस चैट थी दैट आई वाज अटेंडिंग एंड हाँ एक टॉपर थे, तो वो आए हुए थे वॉइस चैट में। तो ही टोल्ड उसमें दैट वो एली से थे, तो आई डोंट रिमेंबर नेम एंड ऑल। उन्होंने बताया उनके एली में जो 3rd रैंक आती थी हर टाइम, उसने क्या किया एग्जाम के 1 डे बिफोर देखा व्हाट वाज द टॉपर स्ट्रेटजी और उसने कितना टाइम दिया था। उन्होंने क्या किया, एक दिन पहले वैसे वो एली में 3rd रैंक पे थे और एग्जाम वाले दिन वी गॉट अराउंड 40 मार्क्स। वो खुद बता रहे थे, आई एम नॉट मेकिंग स्टोरी, वो खुद बता रहे थे कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे ऐसा चेंज कर दिया कि उनके 40 मार्क्स हो गए। तो दिस इज द मैसेज दैट हमें बिल्कुल नहीं कुछ चेंज नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ, एटलीस्ट प्रिपेयर अ वीक Okay. बिफोर, कम से कम 1 वीक या 2 वीक्स का तुम्हें खुद को सेटल होने का टाइम देना चाहिए और एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि तुम उसको फॉलो कर रहे हो, तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। इट्स नॉट दैट कि टॉपर को ने वो फॉलो किया है तो उसे तुम फॉलो करोगे, डजंट मतलब किसी या मतलब वो हमारे लिए हर किसी के लिए वो तरुण डिफरेंट। भी है जो एक अन अकेडमी पे भी आते थे, एक तरुण भी थे ना जो एक अन अकेडमी पे आए थे, आई डोंट नो। तरुण नेम था उनका, आई रिमेंबर। तो उनसे बात हुई थी एक बार मेरी ऑन टेलीग्राम। उन्होंने बताया था कि एक सेकंड में क्या बोल रही थी, हाँ उन्होंने बताया था कि उन्होंने दृष्टि आईएएस दिखाया यार दिन, मतलब एक ग्रुप पे आई आस्क्ड कि डू यू ऑल फॉलो दृष्टि आईएएस फॉर करंट अफेयर्स, सम सेड यस सम सेड नो, ही सेड दैट यस आई फॉलो। तो एक चीज मैं बताऊंगी कि ना मतलब वर्क अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। और मैंने शायद कल भी एक वीडियो बनाई थी एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन की है, तो उसमें भी आई टोल्ड कि ना बिकॉज आई डिसाइड मतलब व्हाट आई डू ना आई जस्ट गो टू यूट्यूब एंड सर्च व्हाट वाज द प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड व्हाट ऑल सजेस्ट एंड देन अकॉर्डिंग टू वर्क दैट व्हाट इज स्टेबल फॉर मी। तो उसमें मैंने देखा कि एलई के जो सर थे एक वीडियो में वो बोल रहे थे कि आप पहले क्वेश्चंस लिखो और फिर पैसेज पे जाओ। नो दैट स्ट्रेटजी मोस्टली डजंट वर्क फॉर ऑल। एक सेकंड लेट मी टेल यू। हां तो हाँ एक वीडियो मैंने देखी थी क्लियर या किसी और की, उन्होंने कहा कि पैसेज पूरा पढ़ लो तो दिमाग में बैठ जाएगा, उससे ज्यादा जल्दी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने कल की वीडियो में बोला था आई विल नॉट से कि आप ऐसा करो, जस्ट फॉलो जो आपको ज्यादा सुटेबल लग रहा है, बिकॉज मेरे लिए तो ये है पैसेज पहले मेरे दिमाग में बैठ जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सबके लिए डिफर करता है। तो आपका क्या? ये पहले से नहीं होता, मैं पहले क्वेश्चंस देखती हूँ। अच्छा I have- याद नहीं रहता एक साथ मैसेज एक साथ। I have tried both the डिफर करता है, strategies. मैंने वही बोला ना। Yeah, I have tried both the strategies, but I prefer पहले मैं पैसेज जाऊँ फिर क्वेश्चंस पे जाऊँ, क्योंकि जब मैं अगर मैं क्वेश्चंस पे पहले जाता हूँ और फिर उस पे पैसेज पे जाता हूँ, और खासकर मेरे साथ लॉजिकल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें दिक्कत आती है, लॉजिकल रीजनिंग के जो रहते हैं, कि उसमें क्या है हमारा फिर जो डिसीजन है वो कई बार क्वेश्चंस की तरफ बायस्ड हो जाता है। अगर हम लॉजिकल में ये चीज फॉलो करते हैं, इंग्लिश में कई बार ये चीज काम कर जाती है, लेकिन अगर हम लॉजिकल में ये अप्रोच फॉलो करते हैं तो मेरे सामने कई बार ये आता है कि लॉजिकल में वो क्वेश्चंस की तरफ वो जो है हमारा बायस्ड हो जाता है ओपिनियन, और वो कई बार हमारे जो है क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आते हुए भी गलत कराता है अगर हम उस चीज को फॉलो, मतलब मेरे उसने कई बार गलत कराया स्ट्रेटेजी में। और उसी चीज को अगर मैं पहले पैसेज पूरा पढ़ लूंगा, उसको एनालाइज कर लूंगा, उसके बाद में अगर लॉजिकल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, रेदर देन कि मैं पहले क्वेश्चंस पढूं फिर मैं पैसेज पढूं। तो लॉजिकल के लिए तो मैं ये अप्रोच बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, अपनी तरफ से तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना ही दूसरे को मैं बस बता देता हूँ कि हाँ ठीक है तुम ट्राई करो जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो। ये अप्रोच भी है, दिस डजंट वर्क फॉर मी, हाउएवर यू मे ट्राई इट। What I think about like in NEET exam जो JEE, I do not have any idea first of all and favorite, ठीक है। लेकिन उनमें ना मेरे को फ्लेवर मतलब फिर भी कुछ तो फ्लेवर दे रखा होगा उन्होंने, है ना, चैप्टर से रिलेटेड दे रखा होगा। लेकिन फ्लैट एग्जाम एग्जाम अगर वो हमें ये बता दे कि जीके के ये सारे टॉपिक्स हैं तो हम प्रिपेयर करके उसमें से आप कुछ भी पूछो, ठीक है। फ्लैट ऐसा एग्जाम उसका कोई फ्लेवर ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लगता है फ्लैट में। मैं भी आता हूँ। ओके श्योर। साक्षी जी, टेल एनीथिंग दैट यू वांट टू से। मैं बताऊँ, अच्छा अपने कॉन्ट्स की स्ट्रेटजी में बताती हूँ। मैथ्स मेरा शुरू से सही रहा है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैंने ना थोड़ा लीगल को अपनी ईगो पे ले लिया। मेरे को क्वेश्चंस आते थे, मैंने बस कहा कि हाँ अब मैंने देखा तो मैं करके छोड़ूंगी। उस चक्कर में एक पैसेज को मैंने 4, 5, 6 बारी पढ़ा, और वो जो अलग अलग मैं पढ़ती अगर उतना टाइम लगा के तो वो सारे मेरे हो जाने थे। 6 बारी के लॉजिकल के क्वेश्चंस काफी ज्यादा ईजी थे, मेरे को तो काफी ईजी लगे। इस चक्कर में फिर मेरे को मैथ्स में 100% एक्यूरेसी रही है अब तक। इस बारी भी मैंने 5 क्वेश्चन ही करे क्वांट्स में, वो 5 सही थे, उसके आगे मैं जा ही नहीं पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। हाँ मतलब मैंने
I asked for some responses. उन्होंने कहा कि हम लास्ट पेपर को देख ही नहीं पाए थे, क्या था फॉन्ट का, वो तो देख ही नहीं पाए थे बहुत बच्चे इस बार। ये अगर चीज ये मेरे नेक्स्ट लेसन है। हाँ हाँ ठीक ठीक बोलो। एक्चुअली क्या है, ये चीज था क्योंकि लीगल का जो सेक्शन था वो बहुत ही ज्यादा लेंदी था हमारे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्चुअली उसको हम लेंदी नहीं कहेंगे। एक्चुअली कहता है कि उसके जो टॉपिक्स की जो डेप्थ थी वो हमारे लिए नई थी, हम लोग पढ़े नहीं थे उतना डेप्थ में। ना कॉन्ट्रैक्ट्स का हम लोग अगर ऑनलाइन होता है, फोन पे टेलीफोन पे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो भी नहीं पढ़े थे। वो भी हमें जो पैसेज दिया गया था उसी के थ्रू एनालाइज करना था। और फिर उसके अलावा जो बाकी जो और भी पैसेजेस थे, काफी सारी चीजें उसमें नई थी जो हम लोग नहीं पढ़े थे पहले से। तो ये दिस मेड द लीगल वेरी लेंदी, क्योंकि हमें उसमें फिर पैसेज पढ़ना पड़ा। अदरवाइज हमारे पास जो इस बार का क्लैट का पेपर था वो पूरा इस तरीके से था कि हमें उसमें पैसेज पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। क्वेश्चन पढ़ो आंसर दो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर दो, इट वाज लाइक दैट। तो अगर इस बार इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने टॉपिक्स वाले हमारे क्लियर नहीं थे ज्यादातर लोगों के लीगल के, तो और लेकिन वो टॉपिक्स इजी थे पर क्लियर नहीं थे, पूरी तरह से हमारे पढ़े हुए नहीं थे। तो इसलिए हम लोगों को पैसेज पढ़ना पड़ा। पैसेज पढ़ के फिर हम, और पैसेज भी उन्होंने छोटे मोटे नहीं दिए थे, अच्छे खासे उन्होंने पूरा का पूरा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा एक्ट उठा के दे दिया था। तो उतना लेंथी चीज को पढ़ना और फिर उसको एनालाइज करके फिर उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, समझना और फिर क्वेश्चन करना, दिस टुक टाइम। सो दिस वाज द रीजन दैट अगर जिन्होंने लीगल पहले कर लिया या जो लोग लीगल पे लग गया और टाइम उन्होंने मैनेज नहीं किया, उनका टाइम निकल गया। इवन मैंने जो है थोड़ा सोचा समझा था, लेकिन एक्चुअली क्या था कि इन लोगों ने रीडिंग टाइम देते नहीं है क्लैट वाले, कि पहले जैसे बाकी पेपर्स में हम लोगों को 10-15 मिनट का रीडिंग टाइम मिल जाता है। हाँ। तो एक स्ट्रेटेजी बनाने का हमें टाइम मिल जाता है कि किस तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे पेपर को, हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेकिन जब ये चीज इसमें क्लैट में इन लोगों ने 10-15 मिनट का भी टाइम नहीं दिया हम लोग को रीडिंग करने का। यहाँ तक कि हम लोग OMR जो भर रहे थे, हम लोग को पूरा पैकेज ही 2 बजे के बाद खोलने दिया। तो हम लोग को OMR भी उसी समय पे भरनी थी, डिटेल्स भी अपनी उस समय पे फिल करनी थी। तो उन सब चीज़ों को, ओवरऑल चीज़ों को मिला के देख के हम लोग के पास टाइम नहीं था कि हम पहले क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ लें, देख लें, उसके बाद फिर हम अटेम्प्ट करना शुरू करें, क्योंकि अगर वो करते तो ज़्यादा टाइम हम लोग का लगता। और इसी चीज़ को देखते हुए क्या था कि मैंने अपना एक जो पहले से प्रिपरेशन थी उसके बेसिस पे मैंने अपना एनालिसिस किया कि मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, क्या चीज़ नहीं कर सकता हूँ। तो पहले मैंने जीके उठाई थी। जीके में मैंने मुश्किल से 10-15 मिनट मैंने दिए होंगे जीके को। और उसके बाद फिर मुझे टोटल मिला के जीके और लीगल का मैं 1 आवर 5 मिनट्स 1 आवर के आसपास मैंने दिया था। तो इतना टाइम फिर उसके बाद मेरे पास बची थी अप्रॉक्सिमेटली 55 मिनट्स के आसपास। फिर 55 मिनट्स में मुझे बाकी 3 सेक्शंस करने थे। उसमें से इंग्लिश वाला भी अगर तुमने देखा होगा तो थोड़ा लेंदी था, हालांकि डिफिकल्ट नहीं था और बहुत ज़्यादा भी, इतना ज़्यादा भी लेंदी नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था। हाँ। तो उस चीज़ को फिर मैंने देखा था। जी बताओ। तो क्लैट एक ऐसा एग्जाम है जो या तो क्वेश्चन को थोड़ा कंपैक्ट करके थोड़ा मतलब लेंदी ना हो लेकिन ज्यादा मुश्किल बना देता है, या फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करके उसको बहुत लेंदी बना देता है। बहुत लेंदी बना देता तो ये मैंने ये चीज मैंने सुनी थी। एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर टाइप ऑफ हार्डनेस, डिफिकल्टी है वो दोनों ही एक तरह की डिफिकल्टी है। अगर तुम पेपर को लेंदी कर रहे हो, इट इज आल्सो एन डिफिकल्टी बिकॉज इट विल टेक बिकॉज तुम्हारा उसमें फिर टाइम मैनेजमेंट चेक हो जाएगा पूरी तरह से। और अगर तुमने फिर पेपर तुम्हारा डिफिकल्ट है तो तुम्हारी मेंटल लेवल, तुम्हारी प्रिपेयर्ड और ये सब चीजें चेक होंगी। और क्लैट और मोस्टली जो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि मैंने जेई भी दिया तो मैंने उसमें भी ये चीज मैंने नोटिस की है कि तुमने स्टडी कितनी बेस्ट की है ये ज्यादा मैटर नहीं करती, तुम्हें उसका एटीट्यूड क्या है, तुम्हें पेपर को अटेंड करने का तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है वो ज्यादा मैटर करता है। और तुम्हारी प्रिपेयर जो तुमने किया है वो प्रिपेयर करने वाली लेवल एक नॉर्मल लेवल भी है, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, तुम्हें खुद पे उस पर भरोसा है कि तुमने जो किया है वो अच्छे से किया है, सही किया है, तो तुम उसमें काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है एकदम हाई लेवल की, लेकिन तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तुम वहाँ पे एग्जाम में जाके अटकोगे या तुम्हारा पूरा तुम कर नहीं पाओगे। तो ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस पे बहुत ज्यादा मैटर करता है कि तुम्हारा पेपर को लेकर एटीट्यूड क्या है। वेरी नाइस। ओके, तो साक्षी का नेटवर्क चला गया। साक्षी आर यू देयर? ना, उसका नेटवर्क चला गया। यस, कोई नहीं, she will be there. I would be reconnecting with you. So, did you had a plan of studying? मतलब एक प्रॉपर प्लान था कि वीकली ये करना है या मंथली ये करना है? एक्चुअली आई एम वेरी मेस्ड अप। मैं पूरा एक मेस्ड अप टाइप से मैं पढ़ता हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा हार्ड जो रहता है ना कि सब लोग का एक स्ट्रिक्ट जो रहता है टाइम टेबल, मेरा वो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं रहता है। मैं जो बोलता भी हूँ मैं ये कहता हूँ कि तुम अपना टाइम डिवाइड करो, लेकिन उस टाइम को स्ट्रिक्ट मत रखो। तुम्हें अगर तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें 2 घंटे इंग्लिश करनी है, तुम ठीक है तुम 2 घंटे इंग्लिश के लिए रखो, लेकिन ये मत रखो कि तुम्हें 3 से 4 ही करनी है, क्योंकि उसमें क्या है हर कोई उसको अडेप्ट नहीं कर पाता, हर कोई एक फॉलोड रिदम में नहीं चल पाता है। तो मैं क्या करता था, मैं अपने उसको टाइमिंग्स को शफल कर देता था। मैं टाइमिंग सेम रखता था कि 2 घंटे मुझे ड्यूरेशन इतना रखना है तो इतना ही रखना है, लेकिन मैं उस टाइमिंग को शफल कर देता था कि कभी इसमें कभी, तो उस तरीके से वो चीज़ बेहतर हो जाती थी मेरे लिए। Okay. Did you read any static GK book? Any? I bought many, but because you had less time. Yeah, I couldn't read any. I bought many, but I couldn't read any. मैंने दृष्टि भी ली थी IAS की, और फिर उसके लिए दृष्टि IAS भी मैंने ली थी पूरी, लेकिन उसमें मैंने कुछ सर्टेन टॉपिक्स ही किए थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। और फिर उसके अलावा एक ल्यूसेंट जीके ली थी मैंने जो एक वो वाला स्पोर्ट्स वाला, हाँ ल्यूसेंट मैंने ली थी। ल्यूसेंट से मैंने क्या वो पढ़ा अपना पॉलिटिकल वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला था ना, ल्यूसेंट ली थी जीके के लिए, लेकिन उससे पढ़ा मैंने लीगल। जीके मैंने उससे मैंने पढ़ाई नहीं, जीके मैंने छोड़ दिया क्योंकि एक्चुअली अच्छे से होगा ना। हाँ उसमें थोड़ा अच्छे से
हाँ उसमें ठीक है, मतलब ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा लेंथी नहीं है, ठीक ठाक है, उसमें समझ में आ जाता है। एक्चुअली क्या है, लीगल में वो लीगल का एक पोर्शन है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाला, जिसमें वो रहता है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर्स और ये पूरा पार्लियामेंट की वर्किंग कौन कैसे अपॉइंट करता है कैसे है, वो वाला जो पूरा सेक्शन है वो मेरा थोड़ा वीकेस्ट पॉइंट था इस चीज़ का, पूरे लीगल वाले पोर्शन। बाकी सब अच्छा था मेरा, केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला कि जैसे किसने क्या कहा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो एक लीगल हिस्ट्री है अपनी, वो मेरा Does it history- come in class? भरोसा कुछ नहीं है, सीधी बात तो सही यही बात है। है, but I think probability is very less. प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि अगर तुमसे ये पूछ लिया जाएगा कि मतलब कि किसने तुम्हें, अगर तुम्हारे वो करंट अफेयर्स से तुम्हें वो लिंक करके उन्होंने ये पूछ लिया कि ठीक है ये सुप्रीम करंट कोर्ट, अफेयर्स से तो फिर ठीक है। क्योंकि कि उन्होंने ये पूछ लिया कि ये जज हैं इसको किसने हटाया था, अगर तुम्हें ये पता है कि कौन क्या है, कौन किस पोस्ट पे है, कौन इंसान, तो तुम उससे जज कर सकते हो कि हाँ ठीक है सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उसको यही बंदा हटा सकता है और इस पोस्ट पे इस समय ये आदमी था, तो दैट वे यू कैन वेरी लॉजिकली नाइस लॉजिक। या तो वो Very चीज़ें nice. काफी हेल्प करती हैं, क्योंकि मैं जो है मेरे को रटने की आदत है नहीं, मैं उसी तरीके से काफी सारी चीजें सॉल्व करता हूँ। सेम सिमिलर। तो Correct. लिंक मैं आज तक लिंक कुछ नहीं बैठा, बस जैसे कि कुछ नाम होता है वो तो करना ही पड़ता है, बट आई वेरी पर्सन, अगर मैं कुछ रटूंगी तो टुमारो आई वोंट बी एबल टू रिमेंबर दैट। अगर कुछ दिमाग में कंसेप्ट है तो वो खुद से ही लिखा जा सकता है। या कॉन्सेप्ट कैन बी, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। Yes. Okay. So I really learned a lot from you. And literally I would say that जैसे कोई तो strategy होती है ना, I think that topper की and चाहे वो कोई person फेल हो गया हो, I will not say fail, अगर कोई किसी की रैंक अच्छी नहीं आ पाई या फिर जो एवरेज है, मतलब सबको पता होता है, and each and every person I think बेशक मेरे मार्क्स सही आ जाए या anything like that, मैं समझती हूँ कि कोई मतलब वैसा पर्सन भी है जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होगा जो टॉपर बिल्कुल सोच भी नहीं सकता होगा, वो कुछ ऐसा लॉजिकल करता होगा। बिल्कुल पॉसिबल। एक चीज होती है, हाँ एक चीज होती है कि जो फ्लैट जैसे एग्जाम में जो हमने पढ़ा वो आया नहीं, या तो उस दिन कुछ गलती हो गई जिसकी वजह से रैंक नहीं आ पाई, अदरवाइज सबके पास होती है स्ट्रैटेजी, एक से एक सबके पास होती है। बस ये होता है कि अगर आपकी रैंक अच्छी आ गई वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बन जाएगी, अदरवाइज नो। यही चीज है एक्चुअली, यही सेम आई रियली लर्न अ लॉट, यही सेम प्रॉपर चीज, की ऐसा नहीं करता है। मतलब मेरा ये सोचना रहता है कि हर किसी के पास उसके खुद के कमियां रहती हैं और एक पॉजिटिव चीजें रहती हैं। तो जिसके पास उसको कमियों का जो एक रहता है, एक तरीके से हम इंटेंसिटी या लेवल मान सकते हैं, जिसका कमियों और इसमें बैलेंस रहेगा, जो उसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं और जो उसकी पॉजिटिव चीजें हैं, जहाँ पे उसका वो बैलेंस बिगड़ा वहाँ पे वो गिरा, वहाँ पे उसका वो टॉपर या फिर जहाँ पे वो सक्सेसफुल होने का रेट कम हो जाता है। जहाँ पे उसने उस चीज़ों को मैनेज कर लिया, या जहाँ पे उसने उसको मैनेज कर लिया कि उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उससे ज़्यादा उसकी जो है वो पॉजिटिव चीज़ हो गई, जो उसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको ही उसने अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करके एक अच्छा ले लिया आगे। जैसे लाइक आई यूज माई मैथ्स, क्योंकि मेरा मैथ्स का मुझे अच्छे से था, तो मैंने अपना इंग्लिश का एक पैसेज, लॉजिकल के 20 क्वेश्चंस को दाव पे लगा के मैंने अपना मैथ्स अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मुझे श्योरिटी थी कि हाँ मैथ्स में 100% मेरा एक्यूरेसी रहेगी, तो मैंने इसलिए मैथ सॉल्व किया और मेरे लॉजिकल के मेरे करीब 22 क्वेश्चंस छूटे थे इस चक्कर में, जो इजी थे। आई वुड हैव डन इट अगर 10-15 मिनट का, फिर या फिर वो जो एक शुरू वाला जो टाइम रहता है जो उन लोगों ने खा जाते हैं अटेंडेंस के चक्कर में कि अटेंडेंस करो तुम, या फिर क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन पेपर को इस दिन इसके बाद खोलना, या ओएमआर में जो डिटेल्स फिल करनी है वो टाइमिंग, एग्जाम टाइमिंग में करो, और वो लोग वो चीज़ें मेरे टाइम नहीं खाते तो शायद अगर 20 में से मैं एटलीस्ट 10 तो अटेम्प्ट कर ही पाता। तो रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अब ऑब्वियसली एनएलयू मिल गया तो इतना रिग्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ रहती है कि हाँ शायद रैंक और काफ़ी इंप्रूव हो जाती है उससे, बेहतर होता है। तो वो चीज़ मतलब हाँ, the one thing that I have learned from this point is that others also will see the video will know कि टाइम की हमेशा दिक्कत रहेगी फ्लैट में, और what I am thinking is कि चाहे हमारे मॉक टेस्ट जो हम देंगे चाहे वो 2 घंटे के हो, ट्राई कि हम उसको जो टाइमिंग है उसको वो 2 घंटे ना सोचकर 1 hour 40 मिनट कुछ इस तरीके से रखें, क्योंकि वही होना है। अगर सपोज ऑनलाइन होगा तो इंटरनेट इशू परफॉर्म थोड़ी ना है कि ऑफलाइन ही होगा, तो इंटरनेट इशू या फिर ओएमआर को देने में तो हमें मॉक का भी टाइम ये नहीं सोचना 2 घंटे का है, इसको थोड़ा कम ही सोचना है। और आई वुड रिकमेंड, एक और चीज मैं रिकमेंड करता हूँ जो मैंने खुद भी मैंने फॉलो की है, लेकिन इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की, क्योंकि मेरे बाद में जो है वो, मैं 1 मिनट को कोई आ रहा है, हाँ तो है क्या कि मैंने जो खुद भी मैंने कई बार ये चीज़ फॉलो करी है कि पहले जो है ना एक स्ट्रेटेजी बना लो कि तुम्हें एक इन क्वेश्चन जो करने हैं हर सेक्शन से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, अगर तुम उसको कर सको, उतना अच्छे से मैनेज कर सको टाइम को, तो तुम्हें टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है स्ट्रेटेजी में कि तुम कहीं पे भी टाइम ज़्यादा ना दे दो। तो उसमें क्या है, तुम्हारा एक लीनियंट स्कोर बना रहता है और उसके लिए तुम्हारी सभी जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब 5 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब में तुम्हारी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी रहनी चाहिए। तो इसमें मैं क्या बोलता हूँ कि तुम एक टारगेट टाइप से बना के जाओ कि तुम्हें 15 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट करने, 15 क्वेश्चन इसके करने, 15 क्वेश्चन इसके, तो एक लाइन से तुम अटेम्प्ट कर लो कि तुम पहले इस सेक्शन के 15 कर लो, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओ सीधे, उसके 15 करो, फिर उसके नेक्स्ट सेक्शन पे जाओ, उसके 5, 10 या 15 जितने भी करने हैं वो करो, फिर वापस दोबारा फर्स्ट सेक्शन पे आओ। तो इस स्ट्रेटेजी में लेकिन तुम्हें टाइम का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है कि तुम कहीं पे भी टाइम में ज़्यादा दिक्कत ना कर दो, क्योंकि किसी को भी तुमने टाइम ज़्यादा दिया तो वो पूरा तुम्हारा उसमें बिगाड़ देगा।
तो बिगड़े नहीं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ता है। लेकिन दिस वर्क्स, क्योंकि मैंने 1-2 अपने फ्रेंड्स को बताए थे, उनके मार्क्स स्कोर बढ़ा है, क्योंकि वो लोग तो एकदम कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे, भाई हमें नहीं देना, फ्लैट नहीं दे रहे हम, हो गया हमारा। मतलब भाई ट्राई तो करो, ट्राई इज मस्ट, ट्राइंग इज बहुत जरूरी है, ट्राइंग इज मस्ट। So Sakshi, are you there? या शी इज देयर नेटवर्किंग। ये वाली जो भी बात बताया ना लक्षित ने, इसमें मेरे को एक दिक्कत आती है कि अगर मैं एक सेक्शन को छोड़ के 15 क्वेश्चन करूँ या फिर अगले फिर 15 पे चली जाऊँ, तो ये थोड़ा मुश्किल मेरे लिए इसलिए होता है ना कि इसमें क्वेश्चन के नंबर पे शफलिंग हो जाती है। जैसे एक लाइन से सारे दे रखे हैं, उसको सकता है मैं 28 का आंसर 38 में मार्क कर दूं। ये मेरे से होता है, इसलिए मैं ये ट्राई नहीं करती। चलो कोई नहीं, वो थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आता है और उस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है वो, क्योंकि देखो नहीं, मतलब बात यही कि जो हम लोग बता रहे हैं, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वो हमारे हिसाब से बेस्ट है। बात यह है कि तुम पे क्या बेस्ट वर्क करता है, तुम्हें वो फॉलो करना है। इट डजंट मीन कि हम जो बता रहे हैं वो एक पत्थर की लकीर है, तुम्हें वही फॉलो करना है। इट्स जस्ट दैट कि मतलब ये हमारे लिए बेस्ट वर्क किया, इट माइट वर्क बेस्ट फॉर यू, मे भी आपके लिए कर सकता है, मे भी आपके लिए वो काम कर जाए, या आपको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं उसमें हेल्प मिल जाए स्कोर इंक्रीज होने में। Did you give ALET? नो आई डिडंट, मैंने केवल क्लैट दिया, उसके अलावा कोई नहीं दिया। अच्छा, कोई भी नहीं दिया? उसके अलावा कोई नहीं, मैं श्योर था मेरे को देना है तो क्लैट दूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं दूंगा। साक्षी दी? उसका नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है, शी इज कनेक्टिंग टू ऑडियो। Okay. Yes. I think she did not. As per she talked on Telegram, so she has told that she did not give it. It's okay, we will ask her when she will be there. So this is whole she devoted to you. Yeah, she is there. Yes, okay, are you there? Okay, did you give ALET? नहीं, मैंने नहीं दिया दिया था था। आपने? नहीं दिया। और कोई are you planning to give any answer? हाँ, मैं BHU का दे रही हूँ एग्जाम, और लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैंने कल या परसों फॉर्म्स का फिल कराया। Okay, great. मेरे को बाद में रिग्रेट हुआ इस बात का, मैंने क्यों नहीं दिया ALET आखिर। हाँ, so one more thing that would suggest that anyone who is watching कि ALET भी दे देना, ठीक है? नहीं एक्चुअली जितने हो वो दे देना। आया था या बिल्कुल आया था, एक्चुअली क्या है, जितने हमें ऑप्शंस हैं, हमें कट ऑफ बहुत हाई गई है। हाँ वो तो जाएगी, जब पेपर इजी है तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, तो वरना फिर वो सिलेक्शन कैसे होगा। तो मतलब यही था कि मतलब मैंने भी अपने फ्रेंड से बात की, तो बात यही हुई, उन्होंने भी यही पूछा कि जब NLU दिल्ली सेकंड नंबर पे आता है ओवरऑल रैंकिंग में, तो तुमने ALET क्यों नहीं दिया। आई वाज लाइक मतलब एक्चुअली रीज़न तो कुछ और ही था थोड़ा, और लेकिन था ये भी कि एक्चुअली मुझे उस समय पे इन्फॉर्मेशन नहीं थी ALET के बारे में ज़्यादा। तो एक रीज़न ये था कि मैंने जैसे मैं बताया, मुझे फ्लैट के बारे में उस समय पता चला था, तो जस्ट हमने ओके। तो साक्षी जी, एक तो अच्छा है, जो लोग 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनको बड़ा सही है। अच्छा पता तो है सबको देना क्या है, क्या करना है पेपर में। और जो 1-2 महीने वाले होते हैं ना, उनका स्ट्रेस का अलग लेवल होता है भाई। मैं बस नहीं देखो, स्ट्रेस तो लेना नहीं, क्योंकि स्ट्रेस में क्या करता है ना, तुम्हारा वो स्कोरिंग कम कर देता है स्ट्रेस। वहाँ पे तुम्हारा माइंड ठीक से वर्क नहीं करेगा, तुम ठीक से एनालाइज नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तुम्हें ये है कि तुम जो पेपर देने आ रहे हो उसको या तो मॉक समझ के आओ, या फिर तुम ये समझ के आओ, देकर आओ कि तुम्हारा होगा नहीं होगा, जो होगा आगे देखा जाएगा। जितना स्ट्रेस लेना है पेपर के बाद देना, कि तुमने पेपर कैसा, अब तुम्हारे लिए काम मैं करता है। स्ट्रेस लेती हूँ तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन एक अलग चीज़ है, बिल्कुल मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है, अगर वो तुम्हारी वर्क को कम कर देता है, तो बिल्कुल नहीं लेना है। वो डिपेंड्स। जैसे कि अगर मॉक में कम स्कोर आ रहा है, मैंने सुना है ये, अगर आपको वो कह रहा है कि अगली बार अच्छा लाना है, तो मतलब एक चीज ये हो सकती है कि आप सोचोगे अगली बार इससे अच्छा है, और एक चीज मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, तो एक माइंडसेट अलग हो जाती है। हाँ बिल्कुल, मैंने वही बोला कि एग्जाम में कॉन्फिडेंस मैटर करता है। हाँ, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। ओके, सो एनीथिंग दैट यू डिड वेरी एक्सेप्शनल, आई विल नॉट से एक्सेप्शनल, बट समथिंग स्मार्ट वर्क जो आपने किया, कुछ ना कुछ तो करा होगा। मैंने खुद नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने नोट्स बोरो किए थे। हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो तुम्हारे खुद के बनाए नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्चुअली क्या था कि पहली चीज तो ये है कि अनअकैडमी में फ्री का था, फ्री उसमें यूजर था, मैं प्लस यूजर नहीं था। तो अब मेरे पास सारी चीजें पढ़ने का उसमें ऑप्शन भी नहीं था, और फिर मैंने क्या कहता, मैंने फ्रेंड्स से जो थे सुरजी और बाकी और जो फ्रेंड्स थे, उनसे मैंने नोट्स फॉलो किए थे। तो उन लोगों से जब नोट्स, श्रुति पांडे, नॉट श्रुति, इट्स ही इज सुरजी, सुधांशु। सुरजी, अच्छा, आई नो सुरजी। Yeah. So in every YouTube class he is there of नितिन सर या फिर किसी, मैंने बहुत नेम सुना है, बहुत ज्यादा क्लासेस में सुना है मैंने। अच्छा, तो I do not attend live class, never on academy. I attend recorded sessions and I do into 2 and 2 times जो starting में होती है। हाँ,
लेकिन कृति मैम की क्लास में 2x काम नहीं करता है। कृति मैम की अगर तुम क्लास करोगे तो उसमें 2x काम नहीं करेगा। नहीं, on YouTube I am taking. अच्छा, YouTube पे भी कृति मैम इतना फास्ट पढ़ाती है ना, YouTube पे भी कृति मैम इतना फास्ट पढ़ाती हैं तो 2x डजंट वर्क। Her starting जो होती है, I am not even able to understand what she's saying. अच्छा, okay, one thing that you would like to suggest to me as well, एग्जाम कौन से देने चाहिए? अब तक तो थोड़ा आइडिया हो गया होगा। एग्जाम जितने तुम्हारे पास ऑप्शंस जितने दिख जाएं सब दे दो, क्योंकि लेकिन हर एक को ऐसे दो जैसे तुम्हारे पास कोई और चांस नहीं है। हर एक को ऐसे देना है जैसे तुम्हारे पास कोई और चांस नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज कॉन्ट्रास्टिंग है कि अब तुम्हें उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, तुम्हें उसको देना ऐसे ही है कि जैसे तुम्हारे पास नहीं होगा, देखा जाएगा, और भी बहुत कुछ है। समझ रहे हो? लॉ में अच्छा नहीं है क्योंकि इट्स वेरी कॉन्ट्रास्टिंग, सिलेबस सेम होता है। इट्स वेरी कॉन्ट्रास्टिंग जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उस चीज का एक जो क्रोनोलॉजी है वो समझोगी तो समझ में आ जाएगा कि समझ आ गया। आई एम हाँ। जस्ट ओके। अरे सिलेबस सेम है, उतना टेंशन नहीं लेंगे। क्या साक्षी? मुझे आवाज नहीं नहीं, आवाज आ रही है। लॉ में ये एडवांटेज है ना, सिलेबस सेम है। या सिलेबस इज सेम। सिलेबस सेम है ये। बट आई थिंक ना व्हेन आई एम टेंशन हां दैट एक तो फ्लैट है, उसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं। लेकिन अब लाइक बीएसयू या ब्यू या फिर एलेट बी, तो उसमें पीवाईक्यू देखो, उसमें दे आर सच 4 टॉपिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट को कौन रिमूव कर सकता है, फाइनेंस कमीशन किससे अपॉइंट होती है। तो वही चीज है, अगर हम फ्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है कि उसमें पैसेज बेस्ड है, एंड जो एलेट है या फिर वन लाइनर अलग एग्जाम है, उसमें थोड़ा अलग आता है, वन लाइनर टाइप, और मुझे थोड़ा डिफरेंट लगता है। ऐसा है, देखो सबका कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, तुम्हारा थोड़ा बहुत इसमें क्या है, सबका कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा बहुत अंतर क्या पड़ता है कि तुम्हारी रीडिंग स्पीड, उसको एनालिसिस करने का तरीका या तुम्हारा अटेम्प्ट करने का तरीका, वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। उसी के हिसाब से तुम्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हर तरह की करनी है, और वो हर तरह की करोगे तो उसमें तुम्हारा हर उसमें बेटर भी रहेगा। मान लो तुम्हारा क्लैट में ही भले ही पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन तुमने अगर वन लाइनर की कर रखी है तो तुम उसमें बीच में लाइंस, तुम उस पैसेज में ही तुम्हारी नजर अगर उन लाइंस पे पड़ जाएगी, तुम आइडेंटिफाई कर जाओगे किस टॉपिक से है, क्या इसका मीनिंग है और कहाँ से इसको लिंक करना है, क्वेश्चन को डायरेक्टली तुम्हारे अटेम्प्ट करने की स्पीड बढ़ जाएगी। लाइक आई सेड कि मतलब जैसे इस बार का जो पेपर था उसमें हमारे पास रीड करने का टाइम नहीं था बिल्कुल भी, खासकर लीगल में बिल्कुल नहीं था। तो उसके में क्या था, इस बार भी मैंने जैसे कुछ टॉपिक्स तो ऐसे थे जिनको करना ही पड़ा था रीड, लेकिन उनके अलावा बाकी में यही था, बाकी में यही चीज़ थी कि उनको सीधे उनमें लाइंस आइडेंटिफाई की। जैसे मैं कृति मैम की क्लास करता था मोस्टली, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती थी कृति मैम, और मैं दिव्य सर की क्लास करता था। उसका रीजन ये था कि दिव्य सर के जो क्वेश्चंस थे, या क्लासेस आर एक्सीलेंट। दिव्य सर की क्लासेस भी मैं करता था लीगल की, उसका एक रीजन था कि उनकी खासकर मैराथन या क्वेश्चन क्लासेस करता था। दिव्य सर की आई हैव नॉट अटेंडेड, मैंने 2-3 करी होंगी। अच्छा, मैंने की है तो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली। आरसी सीरीज जो थी, हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी हुई थी। और एक्चुअली क्या है, दिव्य सर की जो लीगल वाली जो क्लासेस थी उनमें जो उनके क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस का लेवल, डिफिकल्टी लेवल मुझे कृति मैम की क्वेश्चंस के लेवल से हाई लगता था। तो और या फिर ये कह सकते हैं कृति मैम जो थी वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बेसिक्स पे काम करती थी, और दिव्य सर जो थे उसके थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस हमसे करवा लेते थे। तो एक दोनों चीजें हो जाती थी, हमारा बेसिक भी क्लियर हो गया और हमें क्वेश्चंस भी करने आ गए। और वहीं पे अगर हम बात करें तो मैं एक और, मैं सृष्टि मैम की क्लास भी करता था, उनकी सृष्टि घोष मैम। तो सृष्टि मैम लीगल सृष्टि मैम की क्लासेस का क्या था कि सृष्टि मैम ने रात के 10 PM के अराउंड उनकी हर वीक में 1 डे या मैक्सिमम 2 डेज उनके जो थे वो लीगल केस स्टडीज होती थी। जो पुराने केसेस हैं, जैसे केशवानंद भारती के सबसे फेमस केस है, गोलकनाथ केस है, फिर उसके बाद फिर बेरी बेरी करके कोई केस था एक, फिर उसके बाद फ्लिचर वाला था। तो इस तरीके से जो केस स्टडीज थी, तो सारी केस स्टडीज जो थी वो मैम ने करा रही थी। फिर इंदिरा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और ये सब वाले केसेस, हाँ, और फिर उसके बाद फिर एक तुम्हारा वो था निर्भया केस वाला था। फिर मतलब इस तरीके से जो थी जितनी भी केस स्टडीज थी वो सृष्टि मैम की हेल्प से मेरी पूरी हुई थी। तो वो भी काफी हमें हेल्प करता है चीजों को, एक्चुअली वो हमें हेल्प करता है लीगल सिचुएशन में, जब हमारे पास ऑप्शंस जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो उस समय हमें एनालाइज करके उसका सही आंसर ढूंढने के लिए वो चीजें हेल्प करती है हमें, केस जो है। क्योंकि एक्चुअली लॉ में भी क्या करते हैं अपन, जब हम लॉ करते हैं, तो जब हम उससे किसी भी कोर्ट में जाते हैं केस का मतलब हम करते हैं, तो उसमें भी हम यही करते हैं कि हम कई बार पुराने केसेस का रेफरेंस देते हैं, जिससे कि हम उन चीज़ों को डिराइव कर सकें, सही डिसीजन दे सकें। तो यही चीज़ सेम चीज़ जो है हमें केस स्टडीज के थ्रू भी हेल्प मिलती है, कि केस स्टडीज अगर हम करेंगे तो केस स्टडीज के जो हमें जो एक, लेकिन तुम्हें केस स्टडीज में तुम्हें केवल डिसीजन नहीं देखना है, ओवरऑल तुम्हें उसका पूरा पर्सपेक्टिव देखना है, कहाँ से क्या रीजंस थे, क्यों क्या सिचुएशन थी। केस स्टडी मतलब उसको केस स्टडी की तरह ही करना है। तो उसमें जब तुम हर तरफ से करोगी तो उसमें तुम्हारा जो है एक लॉजिकल, मतलब लीगल में डिसीजन मेकिंग तुम्हारी थोड़ी ज्यादा बेहतर होगी। तो ये और वो कंफ्यूजन वाली मैम ने कैसे करी, क्या साक्षी, तो हमें दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है ना। हाँ, आवाज ठीक है, बोलो। बताया लाइट नहीं है, घर में बैठी हूं मैं। हाँ, कोई बात नहीं। नहीं, इट्स ओके नाउ।
अच्छा अच्छा, मैम ने बताया था कि एक बार मैंने हाँ, पूछा बोलो। कि मैम मेरे को दो ऑप्शन से बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्या करूँ? ऑप्शंस दोनों में यस यस ही दिया है आंसर, दोनों में से कोई एक ही सही है और दोनों एकदम मैचिंग मैचिंग से, क्या करूँ? तो मैम ने कहा इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि जिस भी सेंटेंस में ज्यादा लीगल वर्ड्स दे रखे हो या फिर जो उस क्वेश्चन से मैच कर रहे हो, बस वही आंसर होगा। हाँ अब ये this चीज work, wow. हाँ ये वर्क करती है। एक्चुअली क्या है कि वो तुम जा रही हो एक अटेम्प्ट बेस्ड पे, मैं जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट बेस्ड पे। तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऑब्वियसली तुम उस तरीके से कर सकती हो, लेकिन जब एक सही तरीके की बात करें कि हमें उसकी बैकग्राउंड नॉलेज रहनी चाहिए पूरी, तो उस समय की मैं बात कर रहा था, तब उस समय तुम्हें पूरा जो है एक्चुअली क्या है, क्लैट में एक और चीज़ है, तुम्हें प्रिंसिपल्स पे ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें फैक्ट या प्रिंसिपल्स में जितने उन्होंने दे रखा है, जितना पार्ट दे रखा है, तुम्हें केवल उतना ही अप्लाई करना है। अगर तुम उससे ज़्यादा अपना दिमाग लगा दोगे तो वो बोलेंगे तुम अपना दिमाग मत लगाओ, हमें जितना बताया उतने पे ध्यान दो बस, और वहाँ पे मार्क्स कटेंगे। तो जितने इमोशनल नहीं होना है। ना इमोशनल होना है ना अपना ज़्यादा ज्ञान लगाना है। अपना अगर हम ज़्यादा ज्ञान लगाएंगे ये तो कृति मैम बहुत बोलती है ये चीज करते करते। हाँ, क्या कराइए, अपना दिमाग नहीं लगाना है, इमोशनल नहीं होना है। हाँ बिल्कुल। So उसमें क्या anyone who is watching this video, I would request Kriti ma'am or for legal tell me another. लीगल में देखो दिव्या सर, कृति मैम और सृष्टि मैम, तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं Okay. So Sakshi, do you tell me for Quant any teacher on YouTube also, not only मैंने on कौन Unacademy. से This is करा not नहीं one thing. अच्छा हाँ, उस पे Okay. अनअकैडमी पे फ्री नहीं है कोई भी कौन सी टीचर। अच्छा सारे ने प्लस नहीं, पढ़ाया तो वो section- कौन सी, अच्छा मैंने नाम नहीं, सुना मैं है talking about the section शाम classes. चला। नहीं, श्याम सर हैं और एक नीतू मैम भी हैं, लेकिन उनकी ज्यादातर क्लासेस वो फिर प्लस पे ही रहती है। नीतू कमल मैम की उनकी उस पे यूट्यूब पे भी क्लासेस रहती हैं। नहीं मिली मुझे। नीतू मैम की यूट्यूब पे भी रहती हैं कुछ क्लासेस, लेकिन वो एक बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कंसाइज सेशंस रहते हैं, पूरे डिटेल बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं। तो आई वुड रिकमेंड देखो थोड़ा मैथ्स। सा बायस हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, आई वुड रिकमेंड देखो मैथ्स इज बेस्ट व्हेन जब वो खुद किया गया हो, क्योंकि मैथ्स इसमें केवल क्लास 8-10 तक का है, तो बेस्ट वही रहेगा कि तुम उसको खुद एक बार, अगर तुम्हारे पास पूरा टाइम है तो आई वुड सजेस्ट कि तुम एक बार एनसीईआरटी क्लास 1 से लेकर लगा लो। हाँ जब पूरा टाइम है तो मतलब क्लास 1 से तो नहीं, वो थोड़ा ज्यादा होगा, क्लास 6-7 के आसपास का एटलीस्ट। +2 + 2 4 हाँ क्लास 6-7 से लेकर 8-10 तक के तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब क्लियर होने चाहिए। उसके बेसिस पे फिर तुम आगे हाँ, जो उस तरह पूछते मॉक्स भी करोगे और उस पे करोगे अच्छा, मॉक्स और उस पे let's move on to the next topic. Yeah. Okay, let's move on to the next topic. So anything that you want to tell, जो सबसे बड़ी मिस्टेक आपको लगी साक्षी दीदी, because we have conversed a lot with Bhaiya, but you tell. मेरे को मेरी प्रॉब्लम जो पहले मेरे को लगती थी मेरी स्ट्रेंथ है, वही मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम है। जैसे मेरे को लगता था कि मेरा आर्ट्स और मैथ्स दोनों काफी अच्छे हैं, तो मैंने मैथ्स पे मतलब काफी कम ध्यान दिया। अरे वो लाइक हाँ कि आर्ट्स भी मेरे को आता है तो मैं आर्ट्स करूंगी नहीं, तो मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने तो एक बीच में ना वो जो दिव्य भैया रोज भेजते हैं ना वो आर्ट्स के क्वेश्चन जीमैट से, वो भी छोड़ दिया था मैंने। ये जस्ट ओवर कॉन्फिडेंस है ये। और हुआ ये कि जब मैंने अजगर में सही आ रहे हैं, मेरे को सब में सही आ रहे हैं, बस वो इंग्लिश मेरे को एकदम नीचे लेकर जा रहा था। जैसे मैंने 10 करे, मेरे में 3-4 सही हो रहे थे, तो आई वाज लाइक क्या हो गया यहाँ पे। मेरे को लगा ये एग्जाम में नहीं होगा मेरे से, क्या सेक्शन को छोड़ना नहीं है, चाहे हम उसमें बिल्कुल भी अच्छे हो, उससे थोड़ा अंडर काम एस्टिमेट करते नहीं हैं। करने का। हाँ, डोंट अंडर एस्टिमेट, तो वही फिर सेक्शन पेपर में अंडर एस्टिमेट कर देगा हमको। बिल्कुल ठीक ये है। होना है। मैंने सेक्शनल टेस्ट दिया ना, मैंने लीगल करा बहुत सारा, मैंने लॉजिकल भी करा और क्वांट्स भी बहुत सारा करा था सेक्शनल टेस्ट में, लेकिन मेरे आरसी वाले एक भी नहीं करी, एक भी नहीं। तो दिस वाज माय वीकेस्ट पॉइंट दिस टाइम। मुझे फ्लैटेड एग्जाम थी, मैं ना एक मतलब मैंने कुछ भी कर लिया हो, लेकिन पेपर के पहले मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब ये ऐसा एग्जाम लगता है मुझे। हाँ हाँ एक्चुअली वो कभी हो भी नहीं सकता, जब उसमें anything जीके इंक्लूड हो गया, हो जीके जब नहीं जैसे इंक्लूड हो गया तो कभी हो ही नहीं सकता वो कंप्लीट, क्योंकि वो हो सकता है नहीं 1 हो घंटा सकता। जिस समय तुम बोल रहे हो कि मेरा कंप्लीट हो गया, उससे 1 मिनट पहले कुछ हुआ, उसमें तुम्हारे पास खबर ही ना हो तो वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। Literally correct. Okay, so I've heard from many मतलब there's a confusion because you are experienced person, so मैं फ्लैट दे दी आप लोगों ने, तो ideally what do you think? कि फ्लैट जैसे एग्जाम में I have heard from Preeti ma'am that no time is sufficient and no time is left to crack that. Yeah, exam. I agree. ठीक है, तो what do you think? जैसे कि एक पर्सन जिसकी रीडिंग आई कैटेगराइजिंग, पहली चीज दैट एक पर्सन जिसकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है, दूसरा पर्सन जिसकी रीडिंग स्पीड एवरेज है, और तीसरा पर्सन जिसकी रीडिंग स्पीड बिल्कुल ही नहीं है और मतलब बहुत ही लो मार्क्स उसके आते हैं। तो फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट
what should be the strategy ताकि वो कैसे करे, मतलब not strategy but I would say just a recommendation कि कितने घंटे करना चाहिए, या फिर because मेरी कलीग से बात हो रही थी one time down, he said that 10:45 पे 12 होगी, साक्षी भी आपको पता होगा वही person, ठीक है, so he said me that you sleep after 12 and wake up before 6, literally I was shocked, कहते आपको फ्लैट देना है, I was shocked, मैंने कहा हाँ ये इसने भी मेरे को बोला है, but it's because I don't sleep, I need sleep, so it depends, कोई सो सकता है कोई नहीं सो सकता, it's okay, so what do you think कि आपका इससे क्या मतलब कहना है, देखो आज तो बिल्कुल मत बताना, वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सबके लिए, ठीक है, तो इस पॉइंट पे कहना चाहो तो यू कैन से। देखो बोलो ट्रेन जा रही थी, एक्चुअली क्या है, आई वुड रिकमेंड, देखो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 5 to 6 आवर्स स्लीप जो है वो सफिशिएंट हो जाती है। अगर तुम दिन में अबाउट 30 आवर्स का ब्रेक या 20 आवर्स का एक ब्रेक ले, सॉरी नॉट 30 आवर्स 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का अगर तुम आफ्टरनून में नैप ले लो तो बाकी चीज़ वो जो है पूरा तुम्हारा सफिशिएंट हो जाता है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि तुम्हें कितने बजे सोना है क्या सोना है, लेकिन एक जनरल एक आइडिया है कि मोस्टली इतने टाइम में हो जाता है, वो सबके लिए सफिशिएंट हो जाती है। और अब मैंने इसीलिए बोला कि ऐसा हो जाता है, हाँ, तो किसी को हो सकता है, किसी को ज्यादा टाइम चाहिए होता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसमें क्या है, तुम्हें एक या हाँ बोलो कोई नहीं बोलो। ओके, तो इसमें क्या है कि तुम्हें एक पूरा एक टाइम मिल जाता है, क्योंकि हमें एक बार पूरे दिन में हमें पढ़ना तो है नहीं, मतलब पूरे दिन पढ़ते तो नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, मैं ये बिल्कुल नहीं समझता। मैं आई एम अ डे पर्सन, मतलब sleep हम pose on YouTube, it is you are a morning मतलब early bird or night owl, at that time I am very confused because I am neither an early bird who wakes up at 5 or 6 and I am not a night owl person who sleeps late at night, because I live in an environment where there is no noise, literally I live only with my parents, ठीक है, तो there is sufficient time for me to prepare in the daytime, so I think if you sleep at night is made for sleep, but it's okay, for some people it's for study, but it depends कि अगर आपको obviously अब वो पर्सन कह रहे हैं या आप कह रहे हो that आपको दिन में टाइम नहीं मिलता, तो it is very very mandatory कि आप रात को देर सो और सुबह जल्दी उठो, लेकिन for a person जिसको दिन में पूरा टाइम है, it is not necessary, ठीक है, तो ये I think this is my point of view कि ये डिपेंड करता है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और भी कहना चाहो? हाँ, तो मैं वही बता रहा था, तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि तुम रात में पढ़ो या दिन में पढ़ो, मेरा ओवरऑल कहने का मतलब था कि तुम्हें स्लीप टाइम जो है वो तुम्हारा वो 5-6 आवर्स या मैक्सिमम 7 आवर्स के आसपास काफी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें दिन में सोना है, दिन में पढ़ना है, रात में, वो तुम्हारे टाइम ना, वो अब खुद के उसके ऊपर है कि वो कैसे उसको कोई करना चाहता है। मेरा जो एक टाइमिंग था, लाइक आई सेड, कि मैं एक बहुत ज्यादा फिक्स शेड्यूल नहीं बताता, मैं बहुत ज्यादा एक फिक्स नहीं रखता हूँ, मैं एक टेंटेटिव आइडिया वाइज रखता हूँ। Let's come back to class preparation. Okay, so let's rewind all these things. So at all the questions, actually I didn't thought of even 10 questions. I thought that I would ask you all that about your introduction, about how you prepared, and what are the mistakes that you did, and the session would be over. But as you were talking to me, the more and more questions arising in my mind, and that this is the session. So it was really very nice. From you, Sakshi Vidya, I would like to convert from you कि आप कुछ भी बताना चाहो, because आपसे मैंने बात करी थी, I was very sure कि आपको तो हो ही जाएगा, but it says कि मतलब बहुत नहीं, डोंट थिंक दैट इज मतलब कि एक्सपेक्टेशंस नहीं हुई एनीथिंग, ऐसा कुछ मत सोचो, मतलब मेरे से बात करने का तुम श्योर नहीं थी कि मेरा होगा? अरे नहीं, मुझे सबका था, मतलब आई थॉट नहीं, आई आल्सो टोल्ड हर दैट आई विल बी कॉलिंग यू, बट था कि हाँ उनका हो जाएगा, एंड सबका था, मुझे कुछ बच्चे थे जिनका मैं पिन करती थी ना, तो हाँ, तो आई थॉट कि देखो होने की बात नहीं होती, कुछ चीजें होती हैं हर एक इंसान में, तो मेरे को सही लगी। तो साक्षी जी, यू टेल मी एट लास्ट कि क्या करना, मतलब इवन आई थॉट दैट कि साक्षी का हो जाएगा, आई टोल्ड हर स्ट्रेटजीज आल्सो लाइक इसको थोड़ा सा इस तरीके से मॉडिफाई कर लेना, ये शायद तुम्हारे लिए बेहतर है ट्राई कर लेने से, बट कोई बात नहीं, अगली ट्राई होगी या फिर जो भी होगा उसमें होगा बिल्कुल, क्योंकि हम भी यहाँ पे 3 बार जो है बोर्ड के चक्कर में रिजेक्ट होकर बैठे हैं, बोर्ड में मेरे बहुत ही कम मार्क्स हैं, जिसकी वजह से हमें एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं मिला था, 3 साल उसके चक्कर में मैं ड्रॉप हो गया था, क्योंकि मेरा एडवांस, आपने 12th इस ईयर में करी है? मैंने 12th 2018 में की थी, और 19 और 20 का मैं जेईई मेंस और एडवांस में क्लियर हूँ, मेरा क्लियर है। और I did not know this. I thought that you were 12th clearing this year, and this year you are going to add. No, मैंने 2018 में मैंने 12th मेरा हो गया था, लेकिन मेरे बोर्ड में मार्क्स कम थे, और उसी साल मैंने जेईई भी दिया था, मेरा वो क्लियर नहीं था, फिर मैंने सोचा चलो एक और बार ट्राई करते हैं, तो मैंने फिर दोबारा नेक्स्ट ईयर 2019 में जेईई दिया, एडवांस और मेंस मेरा दोनों क्लियर हुआ, लेकिन बोर्ड में मार्क्स मेरे उस साल भी नहीं बढ़े, पहले जो थे उससे केवल 2% मेरे बढ़े, क्योंकि मैंने इंप्रूवमेंट दिया था सीबीएसई का,
तो सीबीएसई के इंप्रूवमेंट में मेरे 2% बढ़े, फिर मुझे फिर भी एडमिशन नहीं मिला। कॉलेज अलॉट हुआ मुझे, एनआईटी अलॉट हुआ, लेकिन फिर भी मुझे एडमिशन लेना उसमें परमिसिबल नहीं था क्योंकि मेरे बोर्ड के मार्क्स कम थे। फिर मैंने सोचा कि चलो एक और बार ट्राई करते हैं, एनआईओएस के थ्रू एक और बार मैं 12 दूंगा, मतलब 2020 में एक और बार मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि अब मेरे पास एक और लास्ट अटेम्प्ट बचा था जेई मेंस का, वो भी एडवांस में दे नहीं सकता, थर्ड अटेम्प्ट। तो फिर मैंने 2020 में फिर दिया इस बार, लेकिन क्या हुआ इस बार कोविड आ गया 2020 में। तो हम लोग का जो था वो बोर्ड का उन्होंने रिजल्ट फिर वापस मेरा 12th के बेसिस पे बना दिया, मेरा फिर बोर्ड बिगड़ गया 12th में। फिर भी मतलब इतनी बार ट्राई करने के बाद भी मेरे 12th के बोर्ड के मार्क्स बढ़ के नहीं दिए। तो 12th में फिर मेरा गया, मेंस इस बार भी क्लियर हुआ 2021 में भी, लेकिन फिर वही बोर्ड के चक्कर में फिर कॉलेज अलॉट हुआ, फिर मैं नहीं ले पाया इसी चक्कर में। तो जेई मेंस का सिलेबस इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड। एक्चुअली तरीका अलग है अटेम्प्ट करने का। सिलेबस अगर जिसकी एनसीईआरटी पूरी क्लियर है वो कर सकता है, बिल्कुल वो 100% जेई मेंस कर सकता है। लेकिन है क्या कि मैं एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करता था ऑन स्ट्रेटेजी रेदर देन कि मैं उसको पूरा डिटेल में जाके मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, लिखूँ बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड में डिटेल में लिखना होता है। और मैं हूँ थोड़ा आलसी टाइप का, मैं सच में आलसी हूँ, तो उतना मैंने बोर्ड में लिखा नहीं और उन्होंने मार्क्स मेरे काट लिए उस चक्कर में। और बाकी क्या है कि एक्चुअली मेरा बोर्ड के हिसाब से मेरा मैथ्स का सबसे वीकेस्ट पॉइंट जो है वो इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन उन्होंने हर बार जितनी बार मैंने पेपर दिया हर बार भर भर के इंटीग्रेशन दिया उन्होंने। तो मेरा उस चक्कर में बहुत सारा मेरा छूटा भी पेपर बोर्ड का, खैर वो इस क्लैट के टॉपिक से बाहर की बात है, इसको रिकॉर्ड हटा देना, इसको हटा देना, ये हमारी बात है। इवन मेरा भी जो वीकेस्ट पॉइंट मैथ्स में इंटीग्रेशन ही है। हाँ, तो होता क्या था कि उसका अब हम लोग जब उसमें अटेम्प्ट करते हैं जेई में, होता क्या है कि वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं। अब उसमें क्या अगर इंटीग्रेशन आता भी है तो हम क्या है कि जो सवाल है उसको मतलब जो ऑप्शंस है ऑप्शंस को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन निकल आता है, आंसर आ जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज मतलब इंटीग्रेशन का उल्टा। तो हम लोग मैं उसको ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करता था पूरा। तो मेरा मेंस भी क्लियर हो गया, एडवांस भी क्लियर हो गया इस तरीके से, क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन में मतलब डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर था, इंटीग्रेशन में दिक्कत आती थी। तो इस चक्कर में मेरा बोर्ड में पूरा बिगड़ा हुआ है अभी तक मामला। हालांकि मैं उसमें एनएलयू तो मिल गया है क्योंकि इसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अब जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, कुछ और अब बेहतर करने आ रहा है। मतलब इसलिए मैं तो आई एम नॉट अ पर्सन हैविंग दैट को फेलियर का तो सामना अभी तक हुआ नहीं, अभी एज ही क्या है, लेकिन फिर भी आई रियली अडोर द पर्सन who has succeeded ना। आई रियली अडोर द पर्सन मोर जो फेल होके भी इतना ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम लाइक दैट, लेकिन हो जाता है विद टाइम। यस, so let's end the session. Before that, a moment, few words that at last that you want to say. Sakshi ji, first thing, how did you write this and whatever you want to say. मैं कहूँगी ना, कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ने का है, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट मोमेंट पे पेपर दे के एक बारी जब टाइम पे जब घड़ी पे नजर जा रही थी ना कि अब इतना ही टाइम बचा है, तो बस उस टाइम लग रहा था कि बस सब खत्म हो गया, सब ऑप्शंस दिखने बंद हो गए थे लिटरली। बस इस कारण अब अटेम्प्ट्स एक तो ऐसे भी कम हो गया। मैंने जब घर पे मॉक्स दिया था तो मेरे को 96 97 तक जा रहे थे, मैंने बस 4-5 मॉक्स दिए थे, लेकिन वहां पे मैंने 91 अटेम्प्ट्स करे हैं। बस मेरे को दिख ही नहीं रहती क्वेश्चन आगे करना क्या है, एक को देखने के लिए मैं 4-5 बार पीछे जा रही थी। ये सब बस कॉन्फिडेंस के कारण हुआ। मेरे को लग रहा था कि बस अब नहीं होगा, कुछ भी कर लूं नहीं होगा। बस मैं यही कहूंगी, कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना और ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना है। जो इस बार क्लास में रैंक 1 है, उनकी इस साल एलेट में रैंक 2 है। आई एम रियली शॉक्ड ओवर दैट, मतलब इज रियली इसको करा ही होगा। ओके, लक्ष्या, एट द एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? वैसे आप लोग बहुत अच्छे से लिखते हैं मन में लाइक क्लास वाज देयर गोइंग टू एंड इट। आई एग्री विद साक्षी। देखो, मैंने जैसे पहले ही बताया कि कॉन्फिडेंस इज द की, प्रिपरेशन इज मस्ट, बट कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सीड। प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, तुम्हारी सही प्रिपरेशन क्वांटिटी क्वालिटी दोनों के हिसाब से बहुत जरूरी है, बट कॉन्फिडेंस भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली जो वहां पे करके आना है वो कॉन्फिडेंट होकर करके आना है। अगर तुम उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम ऑप्शंस में कंफ्यूज करोगे, कंफ्यूज होने के बाद तुम्हारा गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसके बाद तुम्हें अटेम्प्ट्स नहीं बढ़ाने हैं, जबरदस्ती नहीं बढ़ाने, बिल्कुल भी तुम्हें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। लाइक फॉर अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने टोटल अटेम्प्ट जो मार्क किए हैं वो 90 किए थे, टोटल जो मैंने सॉल्व किए थे वो 110 किए थे। मैंने 20 क्वेश्चंस जो थे वो मैंने इसलिए मैंने मार्क नहीं किए क्योंकि वो मेरे थोड़े डाउट में थे, और मैं उतना रिस्क जितना मुझे लेना था कैलकुलेटेड रिस्क वो मैं ऑलरेडी अपने जीके के सेक्शन में ले चुका था। जो मेरा सीए वाला जो मैंने सेक्शन किया था वो मैं उसी सेक्शन में रिस्क में ले चुका था। तो अब मैं बाकी के 90 के ऊपर मैं जो रिस्क जो मैंने 20 क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए नहीं किए, सॉल्व किए पर मैंने मार्क नहीं किए, उसका रीजन यही था कि मैं उनको अब और रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे और नेगेटिव में ले जाते हैं और उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं उतना रिस्क ले चुका हूँ सीए में। तो हैव कॉन्फिडेंस और रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड लेना है, जबरदस्ती अटेम्प्ट नहीं बढ़ाना है। Thank you both of you for your time. So I really learned a lot and I will try to apply this in my situation also. And हम ये वीडियो देखेंगे हम, so they will also learn and जितना हम सक्सेस से नहीं सीख पाते उतना और लोगों से सीख सकते हैं। I believe that is why I did this session. Yeah. Okay? So
Take care. Bye bye. And Yeah, it was stop nice. the recording. Yeah, sure. This meeting was nice. Thank you.